Hello. Today's topic different units of forces. All right. तो यहाँ पे हम इस बेसिस पे फोर्स की यूनिट के बारे में समझेंगे. The basic idea for force is this formula F equal to ma. We know the unit of mass, we know the unit of acceleration. तो for SI unit मास की यूनिट रखेंगे kg, एक्सेलरेशन की यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और in a compact form it is kg meter per second square. Student, a basic confusion, student basic mistake, they repeat कि ऐसे अपॉन भी लगाएंगे और यहाँ माइनस भी लगाएंगे. जब अपॉन लगाना है तो माइनस नहीं लगाना, जब माइनस लगाना है तो अपॉन नहीं लगाना. kg मीटर पर सेकंड, and it is called Newton. That is 1 Newton equal to 1 kg meter per second square. Habitually I write this slash. इसकी डेफिनेशन भी बोली जाती है, सो आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट. इस बेसिस पे निकलेगी. 1 Newton is that force which can produce an acceleration of 1 meter per second in an object of mass 1 kg. I repeat, 1 Newton is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. CGS यूनिट CGS में कन्वर्ट करो तो ग्राम की जगह, इनफैक्ट कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ हमें वो यूनिट यूज करनी है. ग्राम into centimeter per second square, that is gram centimeter second minus 2, and it is called dyne. So 1 dyne is equal to 1 gram सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और उसी तरह से जैसे मैंने न्यूटन को एक्सप्लेन किया था, न्यूटन को डिफाइन किया था, वैसे ही आप डाइन को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. 1 न्यूटन is equal to 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आप kg को ग्राम्स में चेंज कर दो, 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में. Now this is gram centimeter per second square, which is dyne. It is 1 lakh gram centimeter per second square. It is called dyne. और इसको ही हम पावर्स में, it is more scientific or convenient also. Now gravitational unit. For gravitational unit, actually if mass of m, we are interested how much its weight, so it is mg. ma formula है mass into acceleration mg when we are using acceleration due to gravity. वो भी acceleration ही होता है, but it is due to gravity. So that gravitational force will be F equal to mg. तो gravitational unit में if we have 1 kg mass, तो जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है उसमें हम उसे लिखेंगे 1 kg फोर्स. तो SI यूनिट्स के बेसिस पे ग्रेविटेशनल यूनिट होती है kgf, kilogram force. It is not minus, it is a small hyphen, kilogram force. In the same way, gram force, you can write it in very compact way, kgf, gf, kilogram force, gram force. Now what is this kilogram force all about? Let mass of an object is 1 kg, then gravitational force or its weight on this will be called 1 kg F, 1 kg force, and it includes
this relation, that is 1, that is mass into acceleration due to gravity. Mass is 1 kg, acceleration due to gravity is 9.8. So it becomes 9.8 Newton. Or when acceleration due to gravity is roughly taken as 10, then it is 1 into 10, that is 10 Newton. So 1 kg force is equal to 10 Newton. It means earlier there is a discussion. I will give the link of that video in the description, where I have just tried to resolve confusion between mass and weight. So casually we use the word weight for mass. हम पूछते हैं लोगों से आपका वेट कितना है, और वो आंसर देते हैं 50 किलो या 60 किलो, जो भी है 100 किलो, लेकिन वो एक्चुअली किलोग्राम में अपना मास बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे वेट तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। तो मास पर मास वर्ड कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ कर सकते हैं। या तो हम ये बोलें, अगर मेरा मास 1 kg है, तो या तो मैं ये बोलूँ कि मेरा वेट 10 kg है, या ये बोलूँ मेरा वेट 10 kgf है। थोड़ा साइंटिफिक भी रहेगा, आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि आपने गलत वर्ड बोला। तो इस तरीके से जो एक बेसिक कंफ्यूजन है कि लोग वेट की जगह मास को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑलराइट, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। लेट अस सपोज आपका मास है 50 kg। तो आम दुनिया ने फिजिक्स नहीं पढ़ रखी है, वो आपसे वेट ही पूछेंगे। वहां पे अगर आप अपना वेट कैलकुलेट करेंगे mg करके, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। तो अगर कोई आपसे पूछता है आपका वेट कितना है, और आप बोलते हैं मेरा वेट 500 न्यूटन है, तो कोई समझ नहीं पाएगा। और अगर आप ये बोलते हैं जमाने के साथ चलने के लिए कि मेरा वेट 50 kg है, तो फिजिक्स की भाषा में आप गलत कर रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। ये मास है, ये वेट है। तो आपकी जो फिजिक्स की अंतरात्मा है वो भी खुश रहे, और पब्लिक में भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरा वेट 50 kgf है। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो न्यूटन में आ जाएगा आंसर। अगर मुझे सिर्फ मास की जरूरत है, तो मैं आगे का 50 kg ले लूंगा, एंड दैट्स ऑल। दैट इज 1 kgf इक्वल टू 10 न्यूटन। कैजुअली आई एम राइटिंग 10 न्यूटन। ये आप समझते हैं कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो वैसे इसने 9.8 न्यूटन होना है। नेक्स्ट, CGS, इट इज ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स में m हम 1 ग्राम लेंगे, तो वंस अगेन जो फोर्स हो जाएगा वो कितना होगा, 1 ग्राम फोर्स हो जाएगा। एंड 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे एक चीज याद रखिए, मैंने 1 ग्राम कंसीडर किया है, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी, ये जी ऐसे लग रहा है जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो मैं पूरा ग्राम लिख देता हूं। मास है 1 ग्राम, तो फोर्स हो जाएगा 1 GF, 1 ग्राम फोर्स पूरा लिख लेते हैं, ग्राम फोर्स, अदरवाइज वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, पहले हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 रखा, 9.8 या 10, तो अब तो मैं 10 ही बोलूंगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो 1000 लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग, 1 kg पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kgf। यहाँ पे 1 ग्राम पे, यहाँ पे मैंने इस 1 kg को ग्राम में चेंज नहीं किया, यहाँ पे मैं 1 ग्राम पे ही लगने वाला फोर्स को निकाल रहा हूँ, तो इसलिए केवल 1 ग्राम एज यूजल रहा। लेकिन जो जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी, तो यहाँ वैल्यू तो उसकी वही रहेगी। यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। आप कहेंगे यहाँ पे 1 kg था, इसे 1000 ग्राम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हम 1 kg के लिए निकाल रहे थे और यहाँ 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं, और ये तो एक फिक्स वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम इसमें सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, नहीं, हमें इसी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे। एक 1 kg का वेट है मेरे पास, तो उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ा। अब 1 ग्राम का एक छोटा सा पार्ट है मेरे पास 1 ग्राम का, उसके लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो तो जो 1 ग्राम फोर्स है दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू दिस 1000, it will be 1000 dyne। तो द कंक्लूजन इज 1 kgf is equal to 10 Newton, that is equal to 10 into 10 to the power 5 dyne, that is 10 to the power 6 dyne, that is 10 to the power 3 into 10 to the power 3 dyne, and 10 to the power 3 dyne, that is 1000 dyne, is 1 gram force। 10 to the power 3 और इस पूरे की जगह आ जाएगा ग्राम फोर्स, that is 1 kgf is equal to 10 to the power 3 gf। But I will encourage you to always use SI units, much convenient, much easy to understand। और CGS यूनिट्स में अगर वैल्यू दे रखी है या ग्रेविटेशनल यूनिट में वैल्यू दे रखी है, तो जब तक ना पूछा जाए कन्वर्ट देम इनटू SI यूनिट्स, मच कन्वीनियंट, मच इजी। कई बार आंसर CGS या ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखे रहते हैं, बच्चे उन आंसर्स को देखते हैं और कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा आंसर कैसे देना है। बस वहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये इसी बात में एनकरेज करूँगा, ऑलवेज यूज़ SI यूनिट्स। आई होप ये आपको काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। बट ट्राई टू प्रैक्टिस दीज यूनिट्स एंड देयर इंटर रिलेशन अगेन एंड अगेन। एक बार करने पे नहीं होगा क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे कंटेंट। ऑलराइट, इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बाय बाय।